Information Act 2005 has been enacted. So we know that there has been a lot of discussion and disputes leading to the court verdicts on this right to freedom. जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि right to information was not in Constitution of India. Right to freedom of speech and expression, that was one of the fundamental freedom which is available to every citizen of the country, and that is a fundamental right under the Constitution of India. But as I told you in that video also, that there are three methods through which we can learn as to how and why this Right to Information Act has been developed. So first of all, this is the Constitution of India, where from we can take the clue that this has given the provision by which this right to information has come in. The second thing is that the interpretation by the Supreme Court or the judicial decisions, judicial pronouncements, whereby the Supreme Court has interpreted freedom of speech and expression to make it right to information. And the third area where from this right to information has been developed, that was through the NGOs, civil societies and their movements. तो तीन मेथड्स थे कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, डायरेक्ट नहीं था. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए जिसमें उन्होंने उस अनडायरेक्ट प्रोविजन को, जो इनडायरेक्ट प्रोविजन था स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के तरीके से उसको इंटरप्रेट किया. और तीसरा मेथड जो डेवलपमेंट में चला, तीसरा जो एक मेजर सोर्स जिसको हम कह सकते हैं वो चला, दैट वाज द एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, तो उस सब में इस तरीके से ये काम करना शुरू किया. Now the point here is that how we see the development of the right to information. So as I told you that there was a dispute regarding the Information Act, that whether this speech and expression will include right to information or not. So we see that it was only speech and expression. Even the freedom of press was not guaranteed in the Constitution of India, which was there in the US Constitution. So the Supreme Court from the very beginning, it was since 1950, you may be seeing that Romesh Thapar and State of Madras and Brij Bhushan State of Delhi, these were the cases where the Supreme Court has said that the freedom of press is guaranteed under Article 19(1)(a). 19(1)(a) is an article which prescribes freedom of speech and expression. And the same is included in the freedom of speech and expression. This was conferred to all the citizens of the country. So it has also been held by this judgment that the freedom of press under the Constitution is not a big right or not as a higher right than the freedom of the ordinary citizens. जैसा कि सामान्य नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से ये अधिकार प्रेस को भी प्राप्त है. Then Supreme Court of India has also taken a view that the speech and expression will include the right to acquire and import ideas and information. ये एक एरिया शुरू हुआ जहां से हम देखते हैं कि प्रेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को ये अधिकार है स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कि वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, सूचना, विचार को ले सकता है, एक्वायर कर सकता है अबाउट द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. जो कॉमन इंटरेस्ट के मामले हैं, जो उन पर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकता है, एंड ऑल्सो टू आंसर एनी क्रिटिसिज्म which is labeled against one's view through a media. तो सबसे पहले जरूरत क्या पड़ी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया, प्रेस को इंक्लूड किया, because we know that we are a democratic nation and in that democracy the population is very large. So it is not possible that each and every person will go to the authority and will ask and will seek the information. So where from the information would be given? It may be given through the press, and that's why it is also known as the fourth pillar of the democracy. अगर हम प्रेस की बात करें, मीडिया की बात करें, तो इसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है. बाकी के तीन पिलर्स क्या हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. लेकिन ये जो चौथा पिलर है, ये अपने आप में डेमोक्रेटिक नेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके क्या कार्य चल रहे हैं, उनको किस तरीके से पब्लिक किया जाए. सो दिस इज द वर्क ऑफ द प्रेस. And that's why you see the Supreme Court has said that to answer any criticism leveled against one's view through any media, that is also the part of Article 19(1)(a). So this freedom also includes right to impart and receive information through telecasting. It's not only by print media, it's a telecasting, broadcasting or otherwise, because media, that is press, that includes press media, print media, that includes the electronic media, and now it is also including social media. तो जहां कहीं से भी जिस तरीके की भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाए, उनको इम्पार्ट किया जाए. दिस वाज हाउ you see the Supreme Court has given its judgment. So it is thus quite clear that the right to acquire and to get information is a fundamental right under the Constitution of India. But the question is that what type of information it includes. किस तरीके की information ये include करती है. So obviously not all types of the information, हर तरीके की information तो नहीं हो सकती है, and only information which is relating to the matter of public. जो public से related matter है उस पे अगर कोई information है तो वो information, और the importance which is of common importance and which is affecting the people in general. So these type of the informations can be sought by the public authorities or by the public officials. So the government departments जो थे वो क्या कर रहे थे, इस तरीके की कोई information अगर मांगी जा रही थी तो वो information नहीं दे रहे थे. The reason being that we were having an act that is known as the Official Secrets Act of 1923. एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था 1923 के अंतर्गत, जिसमें कि अगर पब्लिक ऑफिसर्स कोई काम कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल सीक्रेट्स क्या है वो उसको सीक्रेट ही रहने दिया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत, और उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा. So when this Supreme Court has given the judgment that right to information is a part of freedom of speech and expression, and the public has a right to seek the information, to receive the information, to impart the information, but the government departments were refusing information to the public because of this Official Secret Act of 1923. But the courts which have interpreted that this is a part of Article 19(1)(a), this right to the people, so now it will be no longer possible for the government to deny such information. अब जब कोर्ट ने कह दिया तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्या मतलब है, उसमें कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके अकॉर्डिंगली इनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अनलेस इट डज नॉट कंसर्न द पब्लिक एट ऑल. अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, कोई कॉमन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस की इंफॉर्मेशन है, जनरल पब्लिक का कोई मैटर है, देन इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन. Then we see that the causes for this development of freedom of speech and expression as right to information is the preamble to the Constitution of India. जो भारत का संविधान है उसकी एक उद्देशिका है, उसके अनुसार क्या है, हम जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. So the Constitution establishes this country as a democracy, and democracy में क्या होता है, the people are supreme. And you know that there is one definition given by Abraham Lincoln that is the best accurate suited definition for democracy, that democracy is a government for the people, by the people, of the people. जो government होती है democracy में वो किसकी होती है, सरकार जो होती है वो people के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा ही वो बनाई गई होती है और जनता ही उसमें राज करती है. तो इस तरीके की जो डेफिनेशन दी गई डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन के द्वारा, दैट इज बेस्ट सूटेड. एंड इन इंडिया वी सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एस्टैब्लिशेस द डेमोक्रेटिक नेशन. सो व्हेन द पीपल हैव अ राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे यहाँ क्या है, 3 लेयर की हमारी गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है. सो ऑल दीज 3 लेयर गवर्नमेंट, दीज आर बीइंग चोजन बाय द
by the citizens of the country. वो हमारे नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है. They have a right to choose, they have a right to elect their representatives in parliament, in assemblies, in local bodies, but that is for a fixed period. 5-5 साल का समय है, अपने फिक्स पीरियड के लिए they are being chosen. So in some countries the people, they also have a right to call them back if they are not performing their functions properly. हमारे यहाँ तो एक बार अगर 5 साल के लिए सरकार चुन ली गई तो वो बीच में नहीं हट सकती. लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर अगर सरकार चुनी गई है, फिक्स टर्म के लिए चुनी गई है, और जो उनके काम है वो काम नहीं कर पा रही है, अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो वापस भी बुलाई जा सकती है उन्हीं जनता के द्वारा जिसके द्वारा चुनी गई है. बट इन इंडिया वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ द प्रोविजंस, like right to recall. So we see that since the government is elected by the people of India, they have a right to know how the government is functioning and whether their problems are being attended by the government effectively or not. So when the people of India, they are choosing, they are electing their representatives, and these representatives are working for the common man, so they must perform their duties properly. They should do the work whatever is assigned to them, and they should not work which is not required, which is not in a proper manner. They should not administer the things in an ill way. So we see that without this right to information, the people were not having any idea as to how they could know what the government is doing and what is happening. So in order to know as to what the government is doing, what are the functioning of the government, it is required that the people must have the right to information or right to know कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, जिसको हमने चुन के भेजा है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सरकार में क्या काम कर रहे हैं. इस सबको जानने के लिए जरूरी है कि हमको वो अधिकार भी मिले कि वो क्या काम कर रहे हैं. तो इसलिए 1947 के बाद से, आफ्टर 1947, we all know that that is the year when we got independence. So post independence India, the reasons were simply that there were the demands of transparency in the government, कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता की जाए, and especially when there are certain events or issues happen, जब भी कोई घटना, दुर्घटना, कुछ भी इस तरीके की चीजें होती थी, उस समय और भी ज़्यादा जरूरत होती थी कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, जो भी कुछ हो रहा है वो सब बताया जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रेजिक डिजास्टर्स, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो आम जनता होती थी वो बहुत ज्यादा उसमें वो इंफॉर्मेशन सीख करती थी कि क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है, क्यों एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, किस वजह से हुआ, सो दैट दे में रीच टू द पर्टिकुलर डिसीजन कि किसकी कमी की वजह से, किसकी नेग्लिजेंस की वजह से इस तरीके के डिजास्टर हुए. And then they ask or they seek this demand for the relevant information from the people's representative in the parliament, जिनको उन्होंने चुन के भेजा, या स्टेट असेंबलीज में जहां पर उनको चुनकर भेजा. एंड डिमांडेड टू द पब्लिक से क्या डिमांड करते थे, द फाइंडिंग्स ऑफ इंक्वायरी कमेटीज, कि अगर कोई ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनी है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, सरकार ने एक कमेटी बना दी कि क्या कारण है, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट होती थी, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होती थी, वो पब्लिक नहीं होती थी, जिससे लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी और चीजें थोड़े दिनों बाद ठंडे बस्ते में चली जाती थी. क्योंकि ये होता है, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले कार्य क्या होता है सरकार का, कि वो एक जल्दी से एक कमेटी बैठा देती है, और जब कमेटी बन जाती है तो जो आम पब्लिक है वो अपना साइट हो जाती है, वो कहती है काम हो रहा है. लेकिन फिर उस कमेटी का नतीजा क्या रहा, उसके रिकमेंडेशंस क्या रहे, उसकी फाइंडिंग्स क्या रही, इस पर किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पब्लिक चीजें नहीं की जाती हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है. सो these were the points that the people they have demanded for this type of the findings of the inquiry committees which were set up by the government. And similarly there were other things also, not only the train accidents. केवल train accidents की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी कई एक्शंस होते थे, पुलिस एक्शंस लाइक लाठी चार्ज कर दी, फायरिंग हो गई, जनता कहीं आंदोलन धरने पे बैठी है तो वहां पे टीयर गैस छोड़ दी, जिसको अश्रु गैस कहते हैं. सो दीज आर द थिंग्स when these things and the police actions were being made. So in that way public demanded
फुल ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, जिसकी वजह से उनको भी जानकारी हो कि जिनको चुनकर भेजा है वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी अपने आप में एक कॉज था कि जानकारी चाहिए थी कि हमारे हमारे बिहाफ पर दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, तो व्हाट दे आर डूइंग। प्रेजेंटली अगर आज की डेट में हम देखें, कोविड-19 के समय पे पीएम केयर फंड बना, and there were many RTIs filed before the authorities, public authorities concerned, कि इसके डिटेल्स बताइए, कहाँ से पैसा आया, कैसा पैसा खर्च हो रहा है, क्या पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर आरटीआई नहीं होता तो शायद ये सब चीजें भी नहीं मिल पाती। सो द डिमांड इज दैट व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग, व्हाट द रिप्रेजेंटेटिव्स आर डूइंग इन द नेम ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के नाम पे वो क्या कर रहे हैं। तो वी सी दैट। हाँ, मैम जो इन्फॉर्मेशन सरकार बताती है, हमें गवर्नमेंट बताती है, हाँ, मैम वो कितना ट्रू होती है मैम, ये कैसे पता चलेगा मैम? ट्रू के लिए तो जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर जो मांग रहा है इंफॉर्मेशन, उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन गलत है, तो वो उसकी अपील कर सकता है, और अपील में ये कह सकता है कि जानकारी गलत है। उसके बाद जब अपील में जाएगा तो वहां से आपको जानकारी मिलेगी। अगर फिर भी लगता है कि जानकारी गलत है तो उसके 3 स्टेजेस हैं अपील के, और जब आप वो पढ़ेंगे, आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे, उस समय भी आपको इसकी जानकारी दी जाएगी कि अपील कहाँ कहाँ हो सकती है, कितने लेवल हैं अपील के, और उसके बाद फाइनली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर कोई मैटर ऑफ लॉ हो। तो सबसे पहले एपीआईओ, जो हमारे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, उसमें जाता है, उसके बाद पीआईओ पे जाता है, उसके बाद जो उसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उनके पास भी जाती है। फिर अगर स्टेट की अथॉरिटी है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और अगर सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंटर की कोई सर्विसेज में है पब्लिक अथॉरिटी, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास भी ये सब चीजें जाती हैं। ठीक है, तो अपील में जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अपने लेवल पे कि सही है या गलत है। अगर आपको लगता है गलत है तो हम अपील कर सकते हैं उसकी कि ये गलत है। ठीक है, केवल अथॉरिटी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपने मुझे गलत दिया है, मुझे सही दो। तो आप उसी अथॉरिटी के पास नहीं, उससे अगली जो ऊंची अथॉरिटी है उसके पास जाएंगे, और ये कहते हुए कि ये मुझे लगता है गलत है। अगर आपके पास कोई उसकी एविडेंस है, गलत होने का कोई प्रूफ है, तो आप वो भी लगाएंगे साथ में। सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है किसी अथॉरिटी से, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। So we see that this information from during 1950s, जब हमारे शुरुआती दौर थे, इंडिपेंडेंस हमने ली थी, तो the people they have aspired कि they were expecting from the government a lot। वो अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे थे, बहुत ज्यादा चीजें चाह रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक लगभग 200 साल के कोलोनियलिज्म और स्लेवरी, गुलामी जिसको कहते हैं या दास्ता कहते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंस मिली। जब इंडिपेंडेंस मिली तो ये लगने लगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, और जो आम जनता, जिनके बहुत सारे अधिकारों को का हनन किया गया था, उनको किसी तरीके के अधिकार ही नहीं दिए गए थे, वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स भी इन लोगों को प्राप्त हो। सो दैट्स व्हाई दे वर ऑफ द व्यू कि ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जस्टिस किया जाए। दे वांटेड दैट दिस फ्रीडम, जो भी उसके फ्रूट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें उनको मिले। और उस समय शुरुआती दौर में ही देखिए, एक कोई पिक्चर भी आई थी, बूथ पॉलिश, जिसमें एक गाना था, आने वाली दुनिया में सबके सर पर ताज होगा। सो दैट वाज द आइडिया that whatever they did during this I mean after getting the independence and they are choosing their government, so they should get justice, उनको justice मिले। जो भी उन्होंने कुछ sacrifice किया है उसके fruits जो है, उसकी जो freedom उनको मिली है, उसके fruits उनको सारे के सारे मिले। So this was the idea basically of the public at large। And you see that when the government started working after 1950, then what was the desire of the common man that could not be fulfilled, वो पूरी नहीं हो पा रही थी because of various reasons। जो वो कहते थे कि जो सर पे ताज होगा, इस तरीके की चीजें हैं, वो हर किसी को वो सब चीजें नहीं मिल पाई। and for that people waited and waited, उन्होंने बहुत इंतजार किया, पर ultimately the frustration grew up on every step। हर स्टेप पे उनको लगने लगा कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है,
और जो आम आदमी है और जो डाउन ट्रॉडन है पर्टिकुलरली, वहां तक कोई जस्टिस नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही हैं। द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच दैट वाज आल्सो वाइडेंड, वो सारी चीजें बढ़ने लगी। जो एक गरीब और अमीर के बीच की जो एक दूरी थी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटीज बनी, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुए, सारी चीजें थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस बने, लेकिन उसके बाद भी ये पुअर एंड रिच का जो एक बीच की दूरी थी वो और ज्यादा बढ़ती चली गई, और एक तरीके से एक डिटेरियोरेशन होता गया हर चीज में, हर चीज में किसी भी तरीके की कमियां दिखाई देने लगी, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो सर्विसेज हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी तरीके की कोई भी सर्विसेज थी, हर किसी में क्वालिटी में डिटेरियोरेशन होना शुरू हो गया। So many of the state governments, they have become bankrupt, में से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब होने लगी इस चक्कर में कि पहली बार नौकरी में आए, ब्यूरोक्रेट्स बने और नेता बने, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पब्लिक का ही पैसा खींचना शुरू किया। सो दिस वाज द थिंग कि जो गवर्नमेंट थी उनके पास पैसा नहीं रहा। साथ ही साथ फिर और एक तरफ देखते हैं, अगर जो खुलेआम जो चीजें पड़ी और आज भी वो रुकी नहीं है, the nexus between the criminals and politicians, जो एक रिलेशनशिप थी वो क्रिमिनल्स की और पॉलिटिशियंस की, वो इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, so that we see the public servants, they were also taking money from the state exchequer and they are draining, like कहते हैं ना नाली में पानी बह रहा है, उस तरीके से सारा सरकार का पैसा, स्टेट एक्सचेकर का पैसा पूरा का पूरा इस तरीके से बहता चला जा रहा था। And the corruption had started eating everything, the entire fabric of society that was being eaten by the corruption. So in all the aspects of life, whether it's a production, whether it's a service, whether it's the health area, whether it's the education, whether any area on which the government was working as the welfare state, in everything you see that the corruption has seen at a very very large stage, बहुत बहुत बड़ी तरीके से देखा जा सकता था। करप्शन शुरू हो गया, और एक इससे हुआ क्या, जो लो इनकम ग्रुप थे, जो विलेजर्स थे, जो मिडिल इनकम ग्रुप थे, जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, दे वर वर्स्ट हिट, उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। एंड दी फंड्स, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड्स आते थे, उन सबको भी, जो डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स आती थी, उस सारे के सारे फंड्स जो है वो ड्रेन होते चले गए, कहाँ, ब्यूरोक्रेसी की तरफ, पॉलिटिशियंस की तरफ एंड क्रिमिनल्स की तरफ। So we see that the hospitals में, जैसा मैंने कहा कि मेडिसिन आती थी लेकिन डिस्पेंसरी में वो दिखाई नहीं देती थी, वो जो सोसाइटी को पहुंचना चाहिए वो मेडिसिन सोसाइटी तक पहुंच नहीं पाती थी, वो बीच में ही बिक जाती थी, उनके अलग कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे, या अगर आती भी थी तो आउटडेटेड एक्सपायरी डेट की आती थी। और उसके साथ ही साथ किसानों की अगर देखा जाए तो उनके लिए एक फाइनेंशियल मैस शुरू हो गया था, दे वर स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड्स। जो पावर सेक्टर था उसमें जो देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा एक चोरी, जिसको कहते हैं थेफ्ट एंड पिलफरेज, that has been started by the section of the society which were having the political power, which were having the muscle power. We all know that in the politics, if you are having the muscle power, if you are having the money power, that speaks for everything. वही एक सबसे बड़ा एक कहना चाहिए कि एक आज की डेट में भी ये अपने आप में एक सबसे बड़ी सत्यता है कि जब आपके पास पॉलिटिकल पावर है, मसल पावर है, मनी है आपके पास, only you can survive in the society, others have no way to survive for. So we see that the common citizens, जिनके पास ये सब चीजें नहीं थी, they were on the crossroads and they didn't know where to go, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़े, क्या करे. So that was all the situations, these were all the reasons, and this necessitated for we can say most persistent and stringent demands for the information and justifications. कि ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया एक तरीके से कारण, एक तरीके से causes थे, reasons थे, जिसको कि ये देखकर हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं सब की वजह से जो आम आदमी था, जो कॉमन सिटीजन था, वो एक पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें धीरे धीरे इस तरीके की आवाजें आनी शुरू हुई, और इन आवाजों के पीछे केवल पॉपुलेशन ही नहीं, उसमें वो संविधान का वो
आर्टिकल 19(1) एक ही था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस भी थे जिसने इनको एक सहारा दिया कि हाँ हम भी जान सकते हैं, हमको भी जानने का अधिकार है. And that's why we see that there were movements like right information through MKSS, जो एक मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उसकी अपने कुछ ये शुरू हुए मूवमेंट शुरू हुए जिसकी तरीके से एक फाइनल शेप में हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी मिल गया. So there are certain things which are important for the legislation of this RTI. In 1990, we see that there was an emergence of right to information movement, and which primarily comprised of three kinds of the stakeholders. तीन तरीके के लोगों से ये शुरू हुआ था. फर्स्ट दे वर द पीपल्स मूवमेंट, जो पीपल का एक मूवमेंट था. दे वर वर्किंग ऑन द एंश्योरिंग बेसिक इकोनॉमिक राइट्स एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर रूरल पुअर. So this was the first stakeholder who started working in 1990, and the relevance and importance of the transparency was brought home to them, and they found that the landless workers in rural areas particularly, they were often cheated and they were not paid full wages. जो एक पूरी उनको सैलरी मिलनी चाहिए, वेज मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, उनसे काम भी करा लिया जा रहा है और उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, जो वर्कर्स हैं रूरल एरिया में पर्टिकुलरली. तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी एक इम्पोर्टेंस को फील किया गया, और इसमें जो फार्मर्स थे और जो वर्कर्स थे जिन पे जमीन नहीं थी, जो गांव में रह रहे थे, जो रूरल पुअर थे, उनका गवर्नमेंट की स्कीम में कैसे एक्सेस हो, वो अपने इकोनॉमिक राइट्स को कैसे ले सके, उनको कैसे एंश्योर किया जाए. So this was the idea, and this movement started working on the rural poor persons for their economic rights, so that they may not be cheated and they may be given full wages. And these workers who were denied access to attendance registers, in which they are putting their thumb, जो होता है ना कि अटेंडेंस लगाई है आपने, अपना थंब में प्रिंट दे दिए और आपने काम किया है या नहीं किया है, तो वो हर रोज बेचारे काम भी कर रहे थे, अपना थंब इम्प्रेशन भी लगा रहे थे, क्योंकि ये जरूरी था गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए. तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड तो पूरे हो जा रहे थे, लेकिन जहां जहां वो काम कर रहे थे उसका उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था. और जब इसके लिए डिमांड की गई कि हमने इतने दिन काम किया है, अटेंडेंस रजिस्टर पे मेरा अटेंडेंस लगा है, उतने दिन का तो पैसा दिया जाए, तो दे वर डिनाइड दी अटेंडेंस रजिस्टर एक्सेस, को अटेंडेंस रजिस्टर नहीं दिया जाएगा. So this was how the first type of thing started for the information movement. Then second group of activists that consisted of those who were fighting for the human rights of people in conflict zones, के वो लोग जो आम ह्यूमन राइट्स, ये तो एक था केवल इकोनॉमिक राइट से रिलेटेड था, दूसरा एक ह्यूमन राइट से रिलेटेड था, लाइफ, लिबर्टी, लिवलीहुड, इस तरीके के जो भी राइट्स थे, privacy, उस पर भी अपना इस तरीके का काम कर रहे थे. एंड दे फाउंड दैट द efforts to bring human rights abuses, human rights violations, and the people, they were illegally detained by the authorities. उनका जो लोगों पे गलत चार्ज लगा के उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो सोसाइटी से ही डिसअपियर हो गए हैं, तो उसमें भी एक इंफॉर्मेशन की जरूरत थी जिसमें कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी. And the third group of the supporters that worked for the environment, this information, was the environmentalists. कि environment से related जो भी चीजें हो रही हैं उसमें बहुत rapid destruction हो रहा था, degradation हो रहा था environment का, और जगह जगह फॉरेस्ट काटे जा रहे थे और इस तरीके से नुकसान हो रहा था. बड़े बड़े मिल ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, वो फैक्ट्रीज लगा रहे थे बिना सर्टिफिकेट के, और उससे बहुत पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था. सो दैट वाज आल्सो अनदर एरिया वेयर दे स्टार्टेड वर्किंग. सो अलोंग विद दीज मूवमेंट्स वी सी that these central to the to fight the transparency of various professionals. और इन सभी में जो तीनों तरीके के मामले थे, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स के हों, ह्यूमन राइट्स के हों, या एनवायरमेंट से रिलेटेड राइट्स के हों, इन सभी मामलों में जो एनजीओस थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके मूवमेंट्स थे, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे, लॉयर्स, एकेडमिशियंस, जो भी थे, रिटायर्ड सर्विस सिविल सर्वेंट्स थे, they all took part in this type of the movement, so that the transparency may be brought in the working of the government functionaries, in the working of the offices of the public authority.
So we see that the constitutional provisions and Supreme Court of India and the movements on the right to information in India, they all originated from the grassroots level. जो grassroots level से था वहां से ये शुरू हुए. जैसा कि मैंने कहा MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, एक ये एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया MKSS के नाम से. एंड इसने जो अपना इनिशिएटिव था, दे स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान. एक भीम तहसील थी देव डोंगरी जगह पर, वहां से इन्होंने अपना ये कैंपेन शुरू किया और इसमें मूवमेंट शुरू हुआ. एंड द बेसिक पर्पस वाज दैट कि जो भी चीजें बिक रही हैं उनके बिल्स क्या है, वाउचर्स क्या है, किसके नाम पर है, स्कूल्स में कौन पढ़ा रहा है, डिस्पेंसरी में कौन जा रहा है, जो छोटे मोटे डैम बन रहे हैं और कम्युनिटी सर्विसेज क्या क्या हो रही है, उस सब में किसको कितना पैसा दिया गया है, इस सब के बिल्स वाउचर्स जो भी है उसकी कॉपीज इंफॉर्मेशन की तरीके से मांगने के लिए ये एक मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अपना एक मूवमेंट शुरू किया. देन ऑन पेपर यू नो दैट डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स जो थे वो सारे कंप्लीट दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कॉमन नॉलेज थी, सभी विलेजर्स वहां पे देख रहे हैं कि ये फंड्स जो हैं उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, ये सब चीजें कंप्लीट नहीं है. डैम बन गया, ऑन पेपर्स बन गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग बन गई, छत उस पे है नहीं, डिस्पेंसरी बनी हुई है, उस पे दीवारें ही नहीं है. तो इस तरीके की चीजें हैं. ऑन पेपर इट इज कंप्लीट बट अदरवाइज इट वाज नॉट कंप्लीट. सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू गेट द कॉपीज as the information, so that whether this work has been completed or not. So this is how you see that they have demanded asking for the information from the public authorities कि वो सारी चीजें दिखाएं. सीमेंट भी लगा दिया तो सीमेंट भी क्वालिटी का नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत पुअर क्वालिटी है जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया है. तो उस सबके बिल्स दिखाइए कि आपने किस नाम से बिल बनाए, बिल में कितना आपने सामान खरीदा और क्या उसमें पैसा लगा, and whether it has been particular used or not, उसका इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया. So we see that after so many years of knocking this, जो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन था, लंबे समय तक ये इस तरीके से फोटो कॉपीज और इन सब की डिमांड करता रहा और फाइनली फोटो कॉपी लेने में सक्सीड भी हुआ कि इनको जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि ठीक है अब से जो भी ये चीजें होंगी इनको फोटो कॉपी, अगर कोई मांगता है बिल्स की तो फोटो कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है कि किस तरीके से फंड्स को यूज किया है ठीक तरीके से या नहीं किया है, इसको किया जा सकता है. तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, वी मस्ट नो दिस. एंड दिस MKSS दिस ऑर्गेनाइज द जन सुनवाई, जिसको कहते हैं ना पब्लिक हियरिंग और पीपल हियरिंग, कि सबसे पहले उन्होंने कहा एक जन सुनवाई शुरू करी राजस्थान में और उसमें पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, दे वर ऑल इनवाइटेड टू लिसन एंड टू रेस्पॉन्ड. तो गवर्नमेंट ने इसको जन सुनवाई को जब शुरू किया तो उन्होंने जो भी रिलेटेड कंसर्न लोग थे जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हो सकती थी या जिनसे इंफॉर्मेशन ली जानी चाहिए थी, उन सबको इनवाइट करते थे कि आके बताइए और उनको रेस्पॉन्ड करिए कि अगर कोई चीज है, अगर वो अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं तो वो भी बताया जाए. लेकिन इस सब के बाद भी वो लोग आते थे जन सुनवाई में और चुपचाप सुनते रहते थे एंड दे वर नॉट ट्राइंग टू रेस्पॉन्ड टू, कि वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी तो करप्शन का जो किया जा रहा है वो सब खुल जाएगा. सो दिस जन सुनवाई दो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय MKS बट इट वाज नॉट प्रूव टू बी सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई. एंड यू सी दैट कि जो पॉपुलर रेस्पॉन्स था वो कोई बहुत बड़ा फेनोमेनल इतना नहीं रहा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जो पॉलिटिशियंस थे वो हमेशा ही इसमें शांत बने रहते थे, वो कोई बहुत ज्यादा जवाब नहीं देते थे. लेकिन एक आइडिया था कि अगर जन सुनवाई होगी तो इस तरीके से जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो उनका खुलासा होगा और उनको सामने लाया जा सकेगा. So this was MKSS. Then second was the Lok Satta. Lok Satta was also an NGO in Andhra Pradesh. It was working in Andhra Pradesh. MKSS working in Rajasthan. Lok Satta was working in Andhra Pradesh. And that was also taken the mass awareness campaign across the state through a postcard campaign. उन्होंने postcard भेजने शुरू किए हर किसी को कि जो
किस तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ पोस्ट कार्ड पर लगातार लिखकर भेजते थे प्राइम मिनिस्टर को, और उनके रिप्रेजेंटेशन भेजते थे कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ बनाए। इसी तरीके से राजस्थान में ही बीकानेर में एक जागरूक नागरिक मंच बनाया गया, जो कि लोगों में अवेयरनेस फैलाता था कि हमारा अधिकार है जानने का, हमें पब्लिक अथॉरिटी क्या कर रही है उससे हम जान सकते हैं। तो इस तरीके के धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो राजस्थान का एक्सपीरियंस था राइट टू इंफॉर्मेशन का, दैट वाज आल्सो इकोड इन द अदर स्टेट्स। जो दूसरे स्टेट्स थे उसमें भी इस तरीके की आवाजें उठने लगी, एंड देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड जो इनकी डिमांड थी राइट टू इंफॉर्मेशन की, पब्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोसाइटीज, सिविल सोसाइटीज, तो इसकी जो मांग थी उसको फिर स्टेट इग्नोर नहीं कर सकती थी बहुत लंबे समय तक, क्योंकि हर तरफ से, हर स्टेट की तरफ से मूवमेंट शुरू हो गए, कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। एंड फॉर because of these campaigning, because of these movements, we see that in 1995 October, there was a meeting held in Mussoorie, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई 1995 में। एंड इन दिस मीटिंग वेरियस एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटर, उन सभी लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया। एंड दिस मीटिंग ऑल्सो फॉरवर्डेड वन एजेंडा ऑफ सेटिंग वन नेशनल बॉडी, एक नेशनल बॉडी बनाई जाए जिसको कि ये काम सौंपा जाए कि किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के ऊपर काम किया जा सकता है। सो 1995 कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ ब्रिंगिंग दिस आरटीआई ऑन पेपर। अभी तक तो क्या थी, डिमांड उठ रही थी 1987 पर्टिकुलरली एनपीएसएस, जहां से डिमांड उठ रही थी कि किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन दी जाए, उससे किस तरीके से उनको जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। लेकिन पहली बार ये लिखा पढ़ी का काम कि हाँ अब राइट टू इंफॉर्मेशन पे कुछ काम करना है, 1995 की इस मीटिंग के बाद शुरू किया गया। Then in August 1996, a meeting was convened at Gandhi Peace Foundation in New Delhi, where this national campaign for people's right to information was born. एक NCPRI के नाम से एक नया एक कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूट एक इसको बनाया गया। एंड इट हैड अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स जो थे इसके एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स एंड एकेडमिशियंस, दे ऑल वर द मेंबर्स ऑफ दैट NCPRI. And this campaign had detailed discussions, and they have decided to get an appropriate law to enact which can cover the entire country, क्योंकि अभी तक हर स्टेट से अलग अलग आ रहा था। तो जब ये NCPRI बनाए तो उन्होंने कहा कि अब ये जो मांग है राइट टू इंफॉर्मेशन की, इसको पूरा किया जाए, और इसको अब स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि इसको पूरे सेंटर लेवल पे, सारी पूरे कंट्री के लेवल पर एक इसको कवर करते हुए कुछ लॉ बनाया जाए, सो दैट एन अप्रोप्रिएट लॉ मे बी इनैक्टेड फॉर द होल कंट्री। और उसके बाद देखा गया कि वन ऑफ द फर्स्ट टास्क ऑफ दिस एनसीपीआरआई इट वाज जस्ट टू ड्राफ्ट अ राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ। उन्होंने अपना जो पहला काम अपने लिए रखा वो क्या था कि राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ को ड्राफ्ट बनाया जाए, उसको बिल पेश किया जाए। सो law that right to information law for the national interest, and what they did, they have enacted that draft bill. And when the draft bill was made by the NCPRI, they sent that bill to the Press Council of India, and Press Council of India that was headed by Justice P.V. Sawant. He was a retired judge of the Supreme Court of India. Then Press Council of India examined that bill, and it has also suggested some modifications, certain additions, and to improve that draft bill. And then they sent the revised bill that was presented before a conference, and that conference that was attended by various representatives of most of the political parties in India, and that conference was held in New Delhi. Then the draft bill which was discussed, and the details which were proposed by the Press Council of India, those were all discussed in that conference, and that was also endorsed and accepted by the participants who were the members from various political parties in India. So we see that the civil society and MKSS, they were all took part in bringing the RTI. इन्होंने ये जितने भी थे इन सब ने ही RTI को लाने में पूरी मेहनत की, और इसके बाद
Next, we'll be discussing as to how this RTI came in and what were those dates and what are the other things which are related to the RTI, so that we can understand that yes, now RTI is working and the situations have been cured now regarding what RTI is doing. So this is how you see that in the first, it is the Constitution of India, that is the major source of for the RTI, which says under Article 19(1)(a), freedom of speech and expression. जब हम कहते हैं speech and expression की बात करते हैं, then we know कि हम बोलेंगे क्या जब तक हमें कुछ जानकारी ही नहीं होगी. So that was the root where from this information has been brought. जब स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे पास लिखित में था संविधान में, उसके बाद दूसरा जो मेजर सोर्स मैंने आपको बताया, दैट वाज द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. And the court has interpreted this Article 19(1)(a) to include not only the freedom of press, not only the freedom of speech and expression, but also to include the freedom to get information, freedom to know, right to impart information, right to receive information, right to seek information. किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को मिलना, देना, प्राप्त करना, ये सब अपने आप में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने. And at the third factor or the third major source of the development of right to information is the working of the civil society members and the NGOs. तो सिविल सोसाइटीज में बहुत से रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे, एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट, जो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, उन सभी ने किसी न किसी तरीके से अपना इसमें कंट्रीब्यूशन किया. और साथ ही साथ जो एनजीओ थे, चाहे वो लोक सत्ता रहा हो, चाहे वो एमकेएसएस रहा हो, चाहे पे जन जागरूक समिति रही हो, जो भी थे, उन्होंने सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, so that we can have the right to information law. So this was something about the historical development and reasons for the evolution of right to information in India. And next we'll discuss some more things about the MKSS as well as the Information Act 2005, as to how it came, whether it has been applied to all or not, and what are the provisions therein. So any question which you are having in your mind, you can discuss with.